نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز، معزز ماؤں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم تختی نمبر 12 پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ حروف لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. تو اس کو ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلا سبق دیکھ لیتے ہیں. سبق نمبر 1 ہے ہمارے پاس. اس میں آپ کو معلوم چلیں گے 2 رول. اور سب سے پہلا رول آپ یہ یاد کر لیجئے کہ جہاں کہیں بھی انا لکھا ہوا ہو قرآن کریم میں، حمزہ زبر آ نون الف زبر نا، انا لکھا ہوا آئے گا، لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ انا. حمزہ زبر آ نون زبر نا، انا. نون الف زبر نا کا جو الف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکسٹرا، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. لیکن لکھا ہوا کس طرح سے آئے گا؟ ہمارے پاس لکھا ہوا قرآن کریم میں نون الف زبر نا کی شکل میں لکھا ہوا آئے گا، لیکن ہم پڑھیں گے کیسے؟ نون زبر نا. یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے. اور دوسرا رول ہمارے پاس سبق نمبر 1 میں یہ ہے کہ الف یا اور واو جب ان پر کوئی حرکت نہ ہو اور یہ لکھے ہوئے ہوں تو یہ لکھے ہوئے جس شکل میں ہوں ان کو پڑھا نہیں جائے گا. یعنی لکھے ہوئے تو آئیں گے قرآن کریم میں، اب یہ بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، کسی ورڈ کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، کسی ورڈ کے لاسٹ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھا نہیں جائے گا. الف یا اور واو اگر ان پر کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ دال کھڑا زبر دا ہے سب سے اوپر لائن میں اور اس کے آگے ہے یا، لیکن یا کو پڑھا نہیں جائے گا. پڑھیں گے اس طرح سے جیسے سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے دال کھڑا زبر دا. تو چلیے دیکھ لیتے ہیں. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زبر دا. سیکنڈ نمبر پر دیکھیے فا. فا میں کیا جڑا ہوا ہے؟ الف جڑا ہوا ہے. الف جو ہے وہ ایکسٹرا ہے اور اس کے بعد عین ساکن ہے، تو یہ پڑھا نہیں جائے گا الف جو بیچ والا ہے، بلکہ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے ہم؟ فا عین زبر فا. الف کو چھوڑ دیں گے، فا کو ڈائریکٹ عین سے ملائیں گے. فا عین زبر فا، فا، فا. تھرڈ نمبر پر دیکھیے واو زبر وا، الف اور لام ساکن. تو یہ الف ساکن جو ہے، الف جو ہے بیچ میں، یہ جو ہے ایکسٹرا ہے اور ہم ڈائریکٹ واو کو لام سے ملائیں گے جیسا کہ آپ سیکنڈ لائن میں دیکھ پا رہی ہیں. تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے واو لام زبر ول، واو لام زبر ول. آگے دیکھیے، آگے ہے زال پہ زو. واو اور لام ایکسٹرا ہے اس میں اور لام ساکن ہے، تو اس میں واو اور الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ جیسے سیکنڈ لائن میں آپ نیچے لکھا ہوا دیکھ پا رہی ہیں زال لام پیش ذل، زال لام پیش ذل. ہجے کرتے وقت بھی، ہجے کرتے وقت بھی ہم واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ زال کو ہم لام سے ملائیں گے. زال لام پیش ذل. فورتھ نمبر پر دیکھیے لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا. یا جڑا ہوا ہے اس میں لیکن پڑھیں گے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہم لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا. ٹھیک ہے، چلیے تھرڈ لائن میں آ جائیے. تھرڈ لائن میں آپ کے پاس اگزامپل ہے انا کا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَأَنَا لَكُمْ، لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ پڑھیں گے کیسے؟ نون زبر نا، وَأَنَا. اور لکھا ہوا کیسے آئے گا؟ نون الف زبر نا. تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے وَأَنَا لَكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ. ایک لفظ بھی ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے وقت ایکسٹرا نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے. جیسے قرآن کریم کے رولز ہیں، جو تلاوت کے رولز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. یہی تجوید کہلاتا ہے. تو جہاں پر بھی انا آئے گا آپ کو یہ رول جو ہے یاد ہو جانا چاہیے کہ ہم انا لکھا ہوا دیکھیں گے لیکن پڑھیں گے کیسے؟ انا. وَأَنَا لَكُمْ، وَأَنَا لَكُمْ. آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھیے اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ عَلَا، عَلَا، عَلَا. لام میں یا جڑی ہوئی ہے لیکن یا پڑھی نہیں جائے گی. عَلَا. تھرڈ نمبر پر دیکھیے یہ جو ہدا، ہدا، ہدا. دال کے بعد یا ہے، یا خالی ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں، یہ ایکسٹرا لکھی ہوئی ہے. ہدا. اس طرح سے پڑھیں گے.
आगे देखिए, आगे है फा, फा अलिफ जबर फा, तो ये फा में जो अलिफ है ये एक्स्ट्रा है, इसको पढ़ेंगे नहीं, फा को डायरेक्ट आइन से मिलाएंगे, फ़अफ़ु फ़अफ़ु फ़अफ़ु। फोर्थ लाइन में आ जाइए, फोर्थ लाइन में सबसे पहले है हमारे पास ययअसु। अब देखिए या है, या में अलिफ जुड़ा हुआ है, लेकिन अलिफ जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, बल्कि या को डायरेक्ट हम या से मिलाएंगे, क्योंकि या पर जज्म लगा हुआ है। सेकंड वाली या जो है हमारे पास उस पर जज्म लगा हुआ है, तो या को डायरेक्ट हम या से मिलाएंगे, ययअसु ययअसु ययअसु। आगे देखिए नराका, रा के बाद देखिए काफ में जो है लाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा, नराका नराका नराका, रा को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, नराका। आगे देखिए वलऊला वलऊला। अब वाव के बाद देखिए अलिफ है, लेकिन अलिफ क्या है, एक्स्ट्रा है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, वाव को हम डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे, वाव लाम जबर वल, हमजा वाव पेश ऊ, वल ऊ, लाम खड़ा जबर ला। लाम में भी देख रही होंगी आप कि या जुड़ी हुई है, लेकिन या पढ़ी नहीं जाएगी, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, वल ऊला वल ऊला वल ऊला। आगे देखिए जाल, जाल के बाद है वाव और अलिफ जो दोनों एक्स्ट्रा हैं, जाल को डायरेक्ट हम लाम से मिलाने वाले हैं, ज़ुल्फ़दुली ज़ुल्फ़दुली ज़ुल्फ़द ज़ुल्फ़दुली ज़ुल्फ़दुली ज़ुल्फ़दुली। आगे देखिए लास्ट लाइन है हमारे पास, फा में अलिफ जुड़ा हुआ है, लेकिन अलिफ पढ़ेंगे नहीं, फा को डायरेक्ट हम दाल से मिलाएंगे, फ़दउ लना फ़दउ लना फ़दउ लना। आगे देखिए फिल अरुदी फिल अरुदी, फा में या जुड़ी हुई है जो एक्स्ट्रा है, उसके बाद अलिफ है वो भी एक्स्ट्रा है, तो फा को डायरेक्ट हम लाम से मिलाने वाले हैं, लाम पर जज्म है, फिल अरुदी फिल अरुदी फिल अरुदी। आगे देखिए जुल जलाली जुल जलाली, जाल पेश जू, उसके बाद है वाव और अलिफ जो दोनों एक्स्ट्रा हैं, जाल को हम डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे, जुल जलाली जुल जलाली जुल जलाली। लास्ट वर्ड है हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में, वल आदियाती। अब वल वाव में देखिए वाव जबर वा और उसके बाद है अलिफ, अलिफ खाली है और उसके आगे है जज्म, तो वाव को डायरेक्ट हम लाम से मिलाएंगे, वल आदियाती वल आदियाती वल आदियाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर फर्स्ट जो है वो पूरा हुआ। अब हम सबक नंबर 2 की तरफ, सेकंड सबक की तरफ अपने चलते हैं। सबक नंबर सेकंड में आप देखेंगी इसी के आगे कुछ रूल्स बताए गए हैं और उनको हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो देखिए सबक नंबर 2 जो है इसमें तशदीद के बयान की तरफ इशारा किया गया है। तशदीद वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ पर कोई हरकत ना हो तो वो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो जिस हर्फ पर भी आप देखें कि तशदीद है और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर कोई हरकत ना हो, यानी जबर जेर पेश, खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश, इनमें से अगर कोई हरकत नहीं है तो वो लिखा हुआ होगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तशदीद से पहले वाला हर्फ। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन में हमारे पास है वल्ला। अब ये ब्लू कलर से आप देखिए जो लिखा हुआ है, इसमें है वाव, वाव जबर वा, उसके बाद है अलिफ, उसके बाद जुड़ा हुआ है लाम। तो अलिफ और लाम ये जो दोनों हैं ये एक्स्ट्रा हैं। इसको हमने कैसे पहचाना, इसको हमने इस तरह से पहचाना क्योंकि हमने लास्ट वाले लाम पर देखा कि लाम पर क्या है, तशदीद लगी हुई है और खड़ा जबर है। उससे पहले है लाम, लेकिन लाम क्या है, खाली है, कोई हरकत नहीं है उस पे। उससे पहले है अलिफ, उस पर भी कोई हरकत नहीं है, खाली है। और उससे सबसे पहले है वाव, तो वाव पर है जबर, इसलिए वाव को डायरेक्ट हम लाम से मिलाएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, वल्ला वल्ला वल्ला। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बिल्ला बिल्ला। अब बाजेर भी
ब्लू कलर से देखिए, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है उसी तरीके से कुरान करीम में लिखा हुआ आएगा, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है, हमें जो रेड कलर से लिखकर दिखाया गया है इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। तो देखिए लिखा हुआ हमारे पास आएगा बाजेर भी, अलिफ होगा उसमें ज्वाइंट और उसमें एक लाम भी ज्वाइंट होगा, लेकिन अलिफ और लाम जो है वो एक्स्ट्रा है, वो पढ़े नहीं जाएंगे। इसको हमने किस तरह से पहचाना, इसको हमने इस तरह से पहचाना क्योंकि जो हमारे पास लाम है, लाम पर है तशदीद और उससे पहले लाम और अलिफ आ गए हैं जिन पर कोई भी हरकत नहीं लगी हुई है। और इस सबक में हमने ये सीखा है कि अगर किसी हर्फ पर तशदीद हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कोई हरकत ना हो तो वो लिखे हुए होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास कद्दी, कद्दी। तो लिखा हुआ किस तरीके से आएगा हमारे पास, काफ, काफ में अलिफ जुड़ा हुआ है और उसके बाद दाल में क्या जुड़ा हुआ है, लाम, लेकिन अलिफ और लाम जो है वो एक्स्ट्रा है, उन पर कोई हरकत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट काफ को दाल से मिला देंगे। कद्दी, कद्दी, कद्दी। आगे देखिए, आगे है फा, फा में क्या हुआ, फा में या जुड़ी हुई है और फा के नीचे है जेर, या एक्स्ट्रा है और उसके बाद है अलिफ, अलिफ भी एक्स्ट्रा है, उसके बाद है सीन में लाम जुड़ा हुआ जो कि एक्स्ट्रा है। इसको हमने किस तरह से पहचाना कि या में भी कोई हरकत नहीं है, अलिफ में भी कोई हरकत नहीं है और लाम पर भी कोई हरकत नहीं है। हरकत किस पे है, फा पर, फा पे है जेर, तो फा को हम डायरेक्ट सीन से मिलाएंगे, फिस्सा, फिस्सा, फिस्सा। सेकंड लाइन में आ जाइए, वाव जबर वाह, अलिफ और लाम जुड़ा हुआ है जो कि दोनों एक्स्ट्रा हैं क्योंकि इन पर कोई हरकत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट वाव को सीन से मिला देंगे, वस्सा, 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 वस्सा। आगे देखिए, आगे है लुर्रा, लुर्रा। लाम को हम डायरेक्ट रा से मिला देंगे और जो अलिफ और लाम है ये जो है दोनों एक्स्ट्रा हैं, तो डायरेक्ट हम लाम को रा से मिलाते हुए पढ़ेंगे, लुर्रा, लुर्रा। आगे देखिए, आगे है वस्सा, वस्सा। इसमें क्या है, अलिफ और लाम जो बीच में है वाव के बाद वो एक्स्ट्रा है, इन पर कोई हरकत नहीं है, इसलिए वाव को डायरेक्ट हम स्वाद से मिला देंगे, वस्सा। लास्ट देखिए सेकंड लाइन में वल्ला, वल्ला। वाव को डायरेक्ट हम लाम से मिला देंगे और ये जो बीच में अलिफ है ये पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं है, वल्ला। अब लफ्जों के साथ हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वल्लाही, वल्लाही, वल्लाही। लाम को मोटा पढ़ना है, वल्लाही। वाव को डायरेक्ट हम लाम से मिलाएंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे वाव और लाम के बीच में एक अलिफ है और एक लाम है जो दोनों एक्स्ट्रा हैं क्योंकि इन पर कोई हरकत नहीं है, इस वजह से हम इन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, वाव को हम डायरेक्ट लाम से मिला रहे हैं। वाव लाम जबर वल, लाम खड़ा जबर ला, वल्ला, हाजिर ही, वल्लाही, वल्लाही। आगे देखिए, बिल्लाही। इसमें लाम जो है ये बारीक पढ़ा जाएगा, ऐसा क्यों है, कहीं बारीक और पढ़ना है कहीं मोटा पढ़ना है, इसका रूल इंशाल्लाह आगे आने वाला है, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इतनी बात ध्यान रखिए, बिल्लाही, तो बा को डायरेक्ट हम लाम से मिलाएंगे और अलिफ और जो एक लाम लिखा हुआ है वो दोनों एक्स्ट्रा हैं क्योंकि तशदीद से पहले अगर किसी हर्फ पर कोई हरकत ना हो तो हम उन हुरूफ को नहीं पढ़ते हैं। बिल्लाही, बा लाम जेर बिल, लाम खड़ा जबर ला, बिल्ला, हा खड़ा हाजिर ही, बिल्लाही, बिल्लाही। आगे देखिए थर्ड नंबर पर, कद्दिहानी, कद्दिहानी। काफ को डायरेक्ट हम दाल से मिला देंगे, काफ में अलिफ जुड़ा हुआ है और दाल में लाम जुड़ा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि कोई हरकत नहीं है, तो काफ को डायरेक्ट हम दाल से मिलाएंगे, काफ दाल जबर कद, दाल जेर दी, कद्दी, हा अलिफ जबर हा, कद्दिहा, नून जेर नी, कद्दिहानी, कद्दिहानी, कद्दिहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिस्समावाती। फा को डायरेक्ट हम सीन से मिलाएंगे और या और अलिफ और लाम ये तीन हुरूफ हैं यहाँ पर, ये तीनों एक्स्ट्रा हैं, फा को डायरेक्ट हमें सीन से मिलाना है, फा सीन जेर फिस, सीन जबर सा, फिस्सा, मीम खड़ा जबर मा, फिस्समा,
वाव खड़ा जबर वा, फिस्समावा, ताज़ेर ती, फिस्समावाती। इस वर्ड को पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि मीम और वाव दोनों को बराबर से खींचना है। आमतौर पर गलती कर देते हैं हम पढ़ते वक्त फिस्समावाती, समावाती पढ़ देते हैं, मीम को नहीं खींचते, वाव को खींच देते हैं। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना है, मीम और वाव दोनों पर खड़ा जबर है, दोनों को खींचना है। फिस्समावाती, फिस्समावाती। लास्ट लाइन में आ जाइए, वस्सलामु। वाव के बाद है अलिफ और लाम, तो ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, पढ़े नहीं जाएंगे। वाव को डायरेक्ट हम सीन से मिलाएंगे, वाव सीन जबर वस, सीन जबर सा, वस्सा, लाम खड़ा जबर ला, वस्सला, मीम पेश मु, वस्सलामु, वस्सलामु, वस्सलामु। यक़ूलुर रसूलु, या जबर या, काफ व पेश कू, यकू, लाम को डायरेक्ट हम रा से मिलाएंगे, और ये जो बीच में अलिफ और लाम जुड़े हुए हैं ये जो दोनों हैं एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि इन पर कोई हरकत नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। तो लाम रा पेश लुर, यक़ूलुर, रा जबर रा, यक़ूलुर रा, सीन वाव पेश सू, यक़ूलुर रसू, लाम पेश लू, यक़ूलुर रसूलु, यक़ूलुर रसूलु, यक़ूलुर रसूलु। आगे देखिए, वाव स्वाद जबर वस, स्वाद खड़ा जबर सो, वस्सो, लाम जेर ली, वस्सोली, हा खड़ा जबर हा, वस्सोलिहा, ताजेर ती, वस्सोलिहाती, वस्सोलिहाती, वस्सोलिहाती। वाव के बाद जो अलिफ और लाम आए हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनको पढ़ेंगे नहीं, वाव को डायरेक्ट स्वाद से मिलाएंगे, वस्सोलिहाती। लास्ट वर्ड देख लीजिए, वाव लाम जबर वल, लाम जबर ला, वल्ला, जाल या देरी, वल्लज़ी, नून जबर ना, वल्लज़ीना। वाव के बाद जो अलिफ है वो एक्स्ट्रा है, पढ़ा नहीं जाएगा, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना। अब आपने ये इतने वर्ड पढ़ लिए हैं और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन से हुरूफ पढ़े जाते हैं और कौन से हुरूफ पढ़े नहीं जाते। आगे जब कुरान करीम की हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें ये इस तरह से वर्ड आएंगे तो आसानी से आप उसको पहचान पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर के ताल्लुक से, सबक नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो सबक नंबर 3 में एक ये चीज आपके सामने आएगी कि साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आए तो साकिन हर्फ पढ़ा नहीं जाता। साकिन क्या होता है? साकिन का मतलब ये होता है जब किसी हर्फ पर सुकून या जज्म लगा हो तो उस हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, एक बार मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे काफ दाल जेर किद, ठीक है, दाल पे क्या है? जज्म लगा हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकती हैं, काफ पर जेर है और दाल पे क्या है? जज्म है, तो हम काफ को दाल से मिलाकर पढ़ते हैं, काफ दाल जेर किद, किद। तशदीद क्या होती है? तशदीद का मतलब ये होता है कि जब किसी हर्फ पर तशदीद हो तो उसको 2 मर्तबा पढ़ते हैं, एक पहले वाले हर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ते हैं और दूसरी मर्तबा उसी पर जो हरकत लगी हो उसको उस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने रूल ये आया है कि जब साकिन हर्फ के बाद, यानी जैसे आप देख रही हैं दाल पे सुकून है, दाल साकिन है और उसके बाद क्या है? तशदीद वाला हर्फ है, यानी ता पे तशदीद लगी हुई है। तो जब साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आए तो साकिन हर्फ पढ़ा नहीं जाता है। यानी अब देखिए लिखा हुआ किस तरीके से आएगा आपके पास, काफ ता लिखा हुआ आपके पास इस तरीके से आएगा, काफ दाल जेर किद, यानी काफ जेर की, दाल साकिन। तो इस तरीके से हम लिखा हुआ देखेंगे कुरान करीम में। उसके आगे होगा ता, ता पे होगा तशदीद, तशदीद के साथ जबर। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे इसको? ये जो बीच में दाल आ गई है ना, दाल साकिन, इस दाल को हम हटा देंगे और डायरेक्ट हम काफ को ता से मिलाएंगे। देखिए ये बहुत रूल आसान है, इसको हमें किस तरह से याद करना है कि जब किसी हर्फ पर यानी साकिन वाला कोई हर्फ आ जाए, मान लीजिए 2 हर्फ हैं और 2 हर्फ के बीच क्या है? एक साकिन वाला हर्फ आ जाए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख के समझ लीजिए कि काफ है, काफ जेर की, और लास्ट में है ता जबर ता, यानी ता तशदीद के साथ है।
और बीच में क्या फंस गया, बीच में फंस गई है दाल। दाल पर क्या है, जज्म या सुकून कह सकती हैं आप। तो रूल ये है कि जब साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए, तशदीद आ जाए किसी हर्फ पर, तशदीद वाला हर्फ पढ़ा जाएगा, लेकिन जो बीच में साकिन वाला हर्फ फंसा हुआ है उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको पढ़ा नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि देखिए ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो जो है साकिन वाला हर्फ उसको हम एक ही मर्तबा पढ़ते हैं, यानी पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं एक मर्तबा। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप तशदीद देखेंगी तो तशदीद ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि तशदीद को 2 मर्तबा पढ़ा जाता है ना। तो दुनिया में भी आमतौर पर हम देखते हैं कि जिसके पास पावर है वही जीतता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ध्यान रख सकती हैं इस बात का कि तशदीद जो है जज्म के मुकाबले वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो 2 मर्तबा पढ़ी जाती है। तो इसलिए उसके सामने जज्म जो है वो फेल हो रहा है, वो हार रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम काफ को ता से मिला रहे हैं, और जो बीच में दाल है जज्म वाली वो पढ़ी नहीं जाएगी। तो डायरेक्ट हम काफ से ता को मिला लेते हैं। काफ ता जेर कित, ता जबर ता, कित्ता, कित्ता। आगे देखिए, आगे है हमजा, हमजा जेर ई, उसके बाद है दाल साकिन, उसके बाद है ज़ा, ज़ा पे है तशदीद। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमजा को हम डायरेक्ट ज़ा से मिला देंगे, और जो साकिन वाला हर्फ है हमारे पास जाल, उसको पढ़ा नहीं जाएगा। हमजा ज़ा जेर इज़, ज़ा ज़बर ज़ा, इज़, इज़, इज़। आगे देखिए 3rd नंबर पर काफ लाम पेश कुल, और रा पे तशदीद है और जबर है। तो हम जो बीच में लाम है तशदीद जिस पर जज्म लगा हुआ है वो पढ़ेंगे नहीं, बल्कि काफ को डायरेक्ट हम रा से मिला देंगे। काफ रा पेश कुर, रा जबर रा, कुर्रा, कुर्रा, कुर्रा। लास्ट में देखिए जीम, जीम को दाल से मिलाना है, जीम दाल जबर जद, और ता जो है ता पे क्या है, तशदीद है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने रूल क्या पढ़ा कि जब साकिन हो और उसके बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए तो साकिन वाला हर्फ पढ़ा नहीं जाता है, तो हम जीम को डायरेक्ट ता से मिला देंगे। जीम ता जबर जत, ता पेश तू, जत तू, जत तू, जत तू। अब देख लिए लफ्जों के साथ हम किस तरीके से देखेंगे कि लफ्ज कुरान करीम में किस तरह से लिखे हुए आएंगे। फर्स्ट देखिए 2nd लाइन में हमजा दाल देर इद, इद, हा बा जबर हब। अब देखिए एक तो हा जो है वो बा के साथ जुड़ी हुई है, और एक उसके आगे है जिस पर तशदीद लगी हुई है। तो हम कौन सी बा पढ़ेंगे, जिस पर तशदीद लगी हुई है उस बा से हम हा को मिलाएंगे, और क्या पढ़ेंगे, बाजिर बी, इज़हब बी। अब बीच में जो ये साकिन वाली बा आई है इसको नहीं पढ़ेंगे। इज़हब बी, काफजेर की, बी की, ता खड़ा जबर ता, इज़हब बी की ता, बायाजिर बी, इज़हब बी किताबी, इज़हब बी किताबी। तशदीद पे जमाना है आपको, इज़हब बी किताबी। आगे देखिए हमजा दाल देर इद, और उसके आगे है जाल पे तशदीद। तो जो बीच में जाल है जिस पर जज्म लगा हुआ है वो नहीं पढ़ेंगे, और हमजा को डायरेक्ट हम तशदीद वाली जाल से मिलाएंगे। हमजा दाल देर इद, दाल जबर दा, इज़्ज़ा, हा जबर हा, बा जबर बा, हबा, इज़्ज़हबा, इज़्ज़हबा, इज़्ज़हबा। आगे देखिए या दाल पे युद। अब रा के बाद राजेर री, राजेर री के बाद क्या है, काफ साकिन, और उसके बाद क्या है, काफ और उस पर तशदीद लगी हुई है। तो बीच में जो ये काफ साकिन है इसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम रा को किससे मिलाएंगे, तशदीद वाली काफ से। युदरिक, काफ पेश कु, युदरिक कु। काफ को हम मीम से मिलाएंगे क्योंकि आगे मीम पर क्या है, जज्म। तो काफ मीम पेश कुम, युदरिक कुम, युदरिक कुम, युदरिक कुम। आगे बढ़ते हैं, या जीम जबर यज, आइन लाम जबर अल। अब आप सोचिए कि आइन को किस लाम से मिलाना है, साकिन वाली लाम से मिलाना है या जो तशदीद वाली लाम है उससे मिलाना है। अब जाहिर सी बात है, हमें मालूम हो गया है कि तशदीद वाली लाम से मिलाना होता है, और जो बीच में साकिन हर्फ आ जाए उसको नहीं पढ़ते हैं। तो आइन को डायरेक्ट हम तशदीद वाली लाम से मिलाएंगे। आइन लाम जबर अल, लाम जबर ला, यज अल्ला, हा उल्टा पेश हु, यज अल्लहू, यजअल्लहू, यजअल्लहू। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, मीम अलिफ जबर मा, वाव जबर वा, मा वा, आइन। अब आइन को हम डायरेक्ट ता से मिलाएंगे, वाअत
ता ज़बर ता, वअत्ता, बीच में जो दाल है वो पढ़ी नहीं जाएगी। मा वअत्ता, नून अलिफ ज़बर ना, मा वअत्तना, मा वअत्तना, मा वअत्तना। अदतना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, अतना, दाल को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आगे देखिए, लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द, लक़द, काफ ताज़िर कित, ता ज़बर ता, कित्ता, जो बीच में दाल साकिन आ गई है उसको नहीं पढ़ेंगे, काफ को डायरेक्ट हम ता से मिलाएंगे। लक़द कित्ता, लक़द कित्ता। आगे है मीम हा ज़बर मह, हा ता पे हा ता ज़बर हत, महत, तपिश्तु, महतु, जो दाल है उसको नहीं पढ़ेंगे, महदतु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, महतु, महतु। आगे देखिए, वाव ज़बर वा, जीम ता ज़बर जत, ता मीम पेश तुम, वजदतुम, वजदतुम, वजदतुम नहीं पढ़ेंगे, दाल जो बीच में आ गई है वो नहीं पढ़ी जाएगी, जीम को डायरेक्ट हम ता से मिलाएंगे। वजदतुम, वजदतुम। लास्ट लाइन देख लीजिए, हमजा को डायरेक्ट ज़ौ से मिलाएंगे, हमजा ज़ौ ज़ेर इज़, ज़ौ ज़बर ज़ौ, इज़ ज़ौ, लाम ज़बर ला, मीम वाव पेश मू, इज़ ज़लमू, इज़ ज़लमू। लास्ट में जो अलिफ है वो भी पढ़ा नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, और जो बीच में जाल आ गई है वो भी एक्स्ट्रा है। इज़ ज़लमू, इज़ ज़लमू। क़ाफ रा पेश क़ुर, नेक्स्ट लेटर देखिए, क़ाफ रा पेश क़ुर, रा बा ज़बर रब, क़ुर रब बाज़िर बी, क़ुर रब्बी, कुल रब्बी नहीं पढ़ेंगे, लाम जो है वो साकिन है और उसके बाद तशदीद वाला लेटर है, तो तशदीद वाले लेटर से हम मिलाएंगे, कुर रब्बी, कुर रब्बी। आगे देखिए, क़ाफ ता ज़बर क़त, ता ज़बर ता, क़त्ता, बा या ज़बर बई, क़त्तबैया ज़बर या, नून ज़बर ना, क़त्तबैयना, जो बीच में क़ाफ के बाद दाल है वो पढ़ी नहीं जाएगी क्योंकि उस पे जज्म है और उसके आगे वाले लेटर पे तशदीद है। क़त्तबैयना, क़त्तबैयना, क़त्तबैयना। लाम वाव ज़बर लव, आगे देखिए, लाम वाव ज़बर लव, ता ज़बर ता, लव ता, वाव अलिफ ज़बर वा, लव तवा, लव तवा। आइन को आप डायरेक्ट ता से मिलाएंगे, आइन ता ज़बर अत, लव तवाअत, ता मीम पेश तुम, लव तवाअतुम। अद तुम नहीं पढ़ेंगे, दाल जो बीच में आ गई है ये इस पढ़ी नहीं जाएगी क्योंकि इस पे साकिन है और उसके आगे क्या है, तशदीद, तो तशदीद वाले लेटर से डायरेक्ट हम मिलाएंगे आइन को, आइन ता ज़बर अत, ता मीम पेश तुम, अत्तुम, लव तवाअत्तुम, लव तवाअत्तुम, लव तवाअत्तुम। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया कि कुछ हुरूफ जो हैं वो लिखे हुए होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। तो इसको एक बार मैं जी, ये जो लेटर्स हैं हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है और आगे भी कुरान करीम में जब ये आएंगे आप इसको आसानी के साथ पहचान लेंगी। चलिए फिर दुआ पढ़ लीजिए, और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी निशा